ਤਾਂ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ब्लैक डे मना रही है कांग्रेस पार्टी। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਨੀਤ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के नाल लगातार ये कार्रवाई चल रही है और तुसीं देखिया कि इस तरीके पहली बार होया है जो राहुल गांधी ते जिहड़े कांग्रेस के एमपीज़ ने या फिर इंडिया अलायंस के जिन्ने भी एमपीज़ ने उन्होंने वालों काले कपड़े पा के रोस जाहिर किया जा रहा है, यानी कि ब्लैक डे अनाउंस किया गया है। 13 अगस्त तक पार्लीमेंट के विच मॉनसून की जो सैशन की कार्रवाई चलनी है। इस तो पहला क्योंकि लगातार जिस तरीके के नाल पेपर लीक ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 33ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨੀਟ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 21 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ और लगातार प्रोटेस्ट भी जारी है। 20 जुलाई ਨੂੰ लाठी चार्ज भी स्टूडेंट्स के उपर किया जाता है, लेकिन कल जिस तरीके दे नाल तमाम कांग्रेस के जिहड़े सीनियर लीडर सी जो MP सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, डॉक्टर अमर सिंह होण, राहुल गांधी क्योंकि खुद उस प्रोटेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल सी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी ਉੱਥੇ मौजूद सन। और ये चीज़ तो जरूर साफ होंदा है कि कोई पहला प्लैनिंग नहीं एक हिसाब की कांग्रेस के वल्लों की गई सी। अचानक शाम को एक प्लैनिंग की जाती है जिस तो बाद PM की रिहाइश के नेड़े तमाम कांग्रेस के लीडर पहुँचते हैं, हथकड़ियाँ लैके वो पहुँचते हैं और जिस तो बाद डिटेन भी किया गया। इस पूरे प्रोटेस्ट की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ते अखिलेश यादव अगवाही कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने डिटेन भी बीते शाम कर लिया गया, 3 घंटे उन्होंने हिरासत के विच रखा गया, बाद में छड्ड दिता गया। सोनिया गांधी खुद ग्राउंड जीरो ते उतरते हैं और प्रियंका गांधी के नाल मुलाकात करने के लिए जाते हैं। और ये सिर्फ नीट का जो पेपर लीक होया कला उही मुद्दा नहीं है, होर भी कई मुद्दे ने, चाहे फिर E20 पेट्रोल का मुद्दा होवे। इस चीज़ को भी लैके लगातार बीजेपी के उपर हमलावर कांग्रेस होंदी हुई नजर आ रही है। दूजे पासे आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार के उपर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार नौजवानों के उपर जो एजुकेशन की लड़ रहे हैं, जो सिस्टम को सुधारन के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने उपर लाठी चार्ज क्यों? आम आदमी पार्टी ये भी कहती कि कांग्रेस के वल्लों जिस तरीके के नाल कल प्रदर्शन किया गया, ये जो 33 दिनों तो जो काकरोच जनता पार्टी उन्होंने प्रोटेस्ट को दबाने की एक कोशिश सी, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मिली भुगत सी बीजेपी और कांग्रेस के वल्लों मिलकर सारिया चीज़ां कीतियां जा रही। लेकिन फिलहाल ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है और ब्लैक डे के वजों जो कांग्रेस के या जो इंडिया अलायंस के जो लीडर ने उन्होंने वल्लों अज काले कपड़े पा के अज काला दिन मनाया जा रहा है।
जी रवनीत ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ मोहम्मद हबीब दा जो कि दिल्ली तो लाइव जुड़े हुए हैं साढ़े नाल। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है काले कपड़े पहनकर सदन की कार्रवाई में जो ये तमाम मंत्री पहुंचे हैं, किस तरीके से जो अब माहौल वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो मौजूदगी है वो दिल्ली के जनता मंतर पर है, जहां पर आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, लेकिन यहां सीजेपी का जो प्रदर्शन है वो भी जारी है। और उधर मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, वहां भी जो है वो काले कपड़े पहन करके विपक्ष जो है बराबर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह से कल विपक्ष ने जो है वो प्रदर्शन किया और उनको डिटेन करके कल देर रात छोड़ा गया, उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा हंगामा हो गया और उसके बाद जो है यहां पर भी प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और यहां पर भी जो सीजेपी का प्रदर्शन है वो बराबर जारी है। और साथ के साथ मैं आपको दिखा दूं, पुलिस भी पूरी मुस्तैद है और आरएएफ के जवान भी यहां मुस्तैद है। पूरी तैयारी के साथ यहां भी पुलिस है कि जो है किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना यहां पर ना हो पाए। मैं आपको दिखा दूं कि आज भी जो है वो प्रोटेस्ट यहां पर जारी है और जो है वो बराबर जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के जी, अगर कोई आदमी काम करता है तो उनके जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके साथ खड़े रहते हैं। आरोप है कि अपने मेंबर पार्लियामेंट को केजरीवाल ने भेज दिया बीजेपी में। ये तो केजरीवाल साहब ज़्यादा बताएंगे कि क्यों, क्या वो गए क्यों, ऐसे आदमियों को भराना क्यों है। हमारे कांग्रेसी हैं, कमिटेड हैं और जो मेरे ख्याल सालों साल चल रहे हैं वो, उनकी फैमिली कभी किसी ने ऐसी। क्या हुआ जो पंजाब से आ रहे क्या उनका किसान आने वाले हैं दिल्ली आज? देखिए, किसानों के ये गवर्नमेंट हमेशा किसानों के अगेंस्ट रही है और उनको रोकना ये बहुत शर्मनाक बात है कि अगर अपनी राजधानी में आकर अपना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इनको चाहिए कि उनके मंत्री जो हैं इनकी गवर्नमेंट के, उनके साथ बात करें कि बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, कैसी है, क्या बात है। वहाँ आदमी भेज देना चाहिए। अगर उनको यहाँ नहीं आने देना तो वहाँ भेज दो किसी को। तो उनको ऐसे गर्मी में, धूप में और बरसात में किसान खड़ा है जो देश का अन्नदाता है, मोदी सब क्या चाहते हैं, मेरा ख्याल देश को बर्बाद होगा। सर देश में बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बात है, ऐसे में अपनी जो क्षेत्रीय राजनीति उसको लेकर नहीं आना चाहिए। ये बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं, आगे बढ़कर कुछ करेंगे। ऐसे में इसलिए मैंने किया था क्योंकि यह सरकार तो निर्दयी है, इससे सुनना तो है नहीं। इसने एक नंबर का इतिहास दुनिया भर में रचाया है। गजनवी ने जितना नहीं लूटा इतना इन लोगों ने राम मंदिर में लूटा। गजनवी लेके मध्य एशिया में गया था, ये कहां लेके गए, आरएसएस मुख्यालय में या बीजेपी मुख्यालय में, किसी को मालूम नहीं है। महंगाई इतनी कर दी जितना किसी को पता नहीं है। यह भी कभी न भूतो न भविष्यति था। उसी प्रकार से 152 पेपर लीक हुए जो आज तक नहीं हुए, यह भी इतिहास है। और जिस प्रकार का लाठी चार्ज इन्होंने किया बच्चों के ऊपर, ऐसा अंग्रेजों भी ने भी नहीं किया था जो नरेंद्र सरकार ने बच्चों के ऊपर किया है। और ऐसे में राजनीति करना उचित नहीं है, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था और मेरे दिल की बात थी, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं। मैं खुद इतना बड़ा हो चुका हूं लेकिन अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट समझता हूं। बच्चे भी तो हैं जिन्होंने रिपोर्टर्स पे अटैक किया, हमारे रिपोर्टर को पीटा भी किया, असॉल्ट भी किया। आपको लगता है वो वायलेंस ठीक था? नहीं, ऐसा कीजिए ना, आप लोग भी सच्चाई दिखा दिया कीजिए, तो फिर कभी कोई आप लोग के ऊपर असॉल्ट नहीं करेगा। ਤਾਂ तमाम तस्वीरां लगातार सामने आ रही ने किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਟ ਪੇपर ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ नजर आ रहे हैं। किसी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति में खड़ी हुई है, चौराहे पर खड़ी है, उसको समझ नहीं आ रहा किस रास्ते पर जाए। बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो गई। केवल एक ही रास्ता है कि दिल्ली की सरकार से इस्तीफा दे दे, नहीं तो जनता इन्हें अपदस्थ करने का काम करेगी। जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर छात्रों पर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले, बहनों के कपड़े फाड़े गए, और उनके समर्थन में जब सदन में हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो सरकार यहाँ सुनना नहीं चाहती, विपक्ष पर आरोप लगा करके सदन की कार्यवाही स्थगित कर देती है। तो मजबूरी में हमारे नेताओं को, पीडीए के जननायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राहुल गांधी जी के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रधानमंत्री आवास पर बैठना पड़ा और वहां जिस प्रकार दुर्व्यवहार
व्यवहार किया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नेता प्रतिपक्ष के साथ, हमारे नेता को जबरन कपड़े पकड़ करके उनको बस में ठूसा गया। वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रभु श्री राम का धन गबन इन्होंने किया है, किसानों को इन्होंने परेशान करके रखा है, छात्र नौजवान परेशान नहीं है, देश का आम जन इनसे मुक्ति चाहता है। और बीजेपी को नहीं, सत्ता से बीजेपी स्वयं हटती है तो फिर जन प्रदर्शन करने का काम करेगी। लेकिन सर आम आदमी पार्टी को तो ये प्रोटेस्ट जो है वो रास नहीं आया। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसको कमजोर करने की ये कांग्रेस की साजिश है। नहीं पता नहीं। एसीपी से मिलने जा। हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। आज मैंने आपको बहुत अच्छी खबर देने के लिए ये मैं आपके साथ आया हूँ और मेरे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब भी हैं, वो भी 1 मिनट में आपसे बात करेंगे। खबर ये है कि पंजाब के हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे 881 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया। नीट का पेपर कितना मुश्किल होता है और सरकारी स्कूलों के में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। पहले हमारे से पहले 2022 में 100 से भी कम बच्चों ने नीट क्लियर किया था। इस बार 881 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। रिक्शे वालों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे अब डॉक्टर बनेंगे, उनका भविष्य अच्छा बनेगा। आप सोच के देखो कि एक रिक्शे वाले का बच्चा जब डॉक्टर बनेगा तो अपने पूरे परिवार की गरीबी दूर करेगा। तो मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे देती है। हमें लगता है जब तक शिक्षा ठीक नहीं करेंगे तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। 75 साल में किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने शिक्षा पे इतनी तवज्जो नहीं दी जितना आम आदमी पार्टी दे रही है। हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। आज मैंने आपको बहुत अच्छी खबर देने के लिए ये मैं आपके साथ आया हूँ और मेरे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब भी हैं, वो भी 1 मिनट में आपसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध जैसी है, जो भी उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना हम पूरा कर रहे हैं और पंजाब के सरकारी स्कूलों के 881 बच्चों ने नीट क्लियर किया है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूं जो सुबह 3 बजे की, सुबह 4 बजे की घंटी लगा के अपने बच्चों को जगाया, पढ़ने के लिए उत्साया। तो पंजाब नंबर 1 बन रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना था कि पूरे देश को शिक्षित करना है, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। तो शिक्षा में पंजाब का रिजल्ट जो है वो बहुत ही कमाल का है। सबको बधाई। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही हम पंजाब में, क्या पूरे देश में हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, लिखें और बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे गरीब का बच्चा। क्योंकि ये लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड गरीबी नहीं खत्म कर सकते। ये रोटी तो दे सकते हैं शाम की, लेकिन इनसे गरीबी दूर नहीं हुई। गरीबी दूर तब होगी जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे। आपके बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे, 50-50, 1-1 करोड़ के पैकेज पे वो IIT में एडमिशन लेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करेंगी, तब जाके जो है तो देश जो है वो विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद।